स्टेप आगे आइए। सॉरी, वन स्टेप आगे आइए। आगे ठीक है ना, लाइट आ रही है। हाँ जी, यार रुकिए। अच्छा एक सलमान भाई, चलो भाई। थैंक यू, थैंक यू। मैं थोड़ा सा बॉडी टच। थैंक यू सर। थैंक यू। रेडी? एक सेकेंड ना। रेडी? थैंक यू। जस्ट सोलो प्लीज, सोलो। थैंक यू। थैंक यू। लाइट क्या हुआ? हो गया क्या? सर थोड़ा सा शैडो सर आपसे बात करते हैं। सर सामने आते सर। सर रुकिए। सेंटर सर, सेंटर सर आपके राइट में। सर यार, सर ये सर वन मोर राइट। अरे थाम ना, सुनिए। खाली इधर ये ऑटो ऑटो सर। She's a fantastic human being, very emotional. She was all heart. In fact, all heart and no brain. Very, very emotional person. Whatever she did with a passion. And maybe God, likes people like that to be close to him. So, this is an effort we made with fantastic, talented director, Mr. Bharat. So please have a look at this teaser, this trailer. And I hope for Aarti Agarwal's sake, this film is received well by the audience because this pretty much is her last film. So, thank you so much for coming. ये कौन है भाई? ये प्रोड्यूसर है क्या? सब लोगों को थैंक्स इधर आके उनको ब्लेस करने के लिए। ये पिक्चर पहले मेरे को खान साहब ने अपॉर्चुनिटी दिया था हिंदी में फर्स्ट स्टेट फिल्म करने के लिए। एंड टाइम मीडिया दोनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड ये पिक्चर स्टार्ट करने के पहले बहुत कुछ था मुकुल देव साहब से एंड आरती अग्रवाल SSR से करने, मगर ये रिलीज टाइम पे आरती अग्रवाल नहीं है, वो ये दुख का बात है। बहुत बात करना चाह रहा हूँ मगर आई कांट नो, बहुत मुश्किल से पिक्चर बना है। एक्सलेंट मूवी एंड मुकुल देव जी एक्सलेंट परफॉर्म एंड आरती अग्रवाल जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Now I request Rahul from Time Media to say something about his journey. And Rahul जी बताइए, प्रोड्यूसर ने आपका सम्मान किया प्रेजेंटर का. Hi, good evening everyone. First of all, I'd like to thank all the members of the media. Thank you for coming out and supporting us. Basically, Operation Green Hunt, this was a term coined by the Indian media in 2009 when the government launched its anti-Naxalite offensive attack. And Naxalites have been said that they are the largest internal security threat to our country. And there have been many filmmakers who've touched upon this topic. But the reason we got involved with this project is because not only does it depict the life of Naxalites, but it also comes up with a solution. And that's what caught my eye. And that's how we've been associated with this film. And of course, Time Media and Rahman Khanji, we've been associated for many, many years. Unfortunately, Aarti Agarwal is not amongst us. And I know that she was really looking forward to the release of this film. And due to problems with the censor board, we have not been able to release the film. Hopefully soon all these problems will go away and we should be able to release it very soon. But anyways, thank you so much for all your support. And hopefully this movie does justice to all the hard work by the director and the cast and crew. Thank you. I request Saurabh sir to please अपने कैरेक्टर और अपने को-एक्टर के बारे में कुछ बताएं. सर यहाँ पे ये फेस लाइट यहाँ पर आ रही है. The moment to speak about the actors. With the loss of, just like Mukul ji told me, I didn't have the opportunity to work with her. I was called in the second half when the whole things was changed. when जब मेरी entry भी है तो पूरी फिल्म बनने के बाद आधी फिल्म जो है खान साहब ने स्क्रैप कर दी थी. सौरभ जी जरा इधर आ जाइए थोड़ा. तो मुझे मौका नहीं मिला आप लोगों के साथ. अब सब मैं काम कर चुका हूँ 43 में. बट स्टिल मतलब ये तेलुगु फिल्म सेकंड है. मेरी फर्स्ट थी राजन्ना एस नेहरू. तो इस सब्जेक्ट बहुत प्यारा था और आई थिंक 5-6 घंटे के अंदर खान साहब ने जो मुझे बैकड्रॉप बताया अबाउट नक्सलाइट प्रॉब्लम जो इंडिया में आई थिंक इसे एवरी नूक एंड कॉर्नर, चाहे बिहार हो साउथ हो. तो मुझे एक इशू है जिसको डील खान साहब कर रहे थे और जो दिल की बहुत करीब है आम पब्लिक का. मैं अपने को एक्टर्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ सब बैठे हुए हैं, सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. करीब शायद जल्दी में थे वो निकल गए. बट आई एम थैंकफुल टू खान साहब and my heart goes out to Aarti Agarwal. God bless her soul and bless God bless this film that it should succeed and make money also. Thank you. Thank you. Thank you. Now I request Rajesh भाई. आगे रमेश जी पूछ रहे थे. विकास सर, रमेश भैया पूछ रहे. अरे सर आइए ना सर. ये इस बात की खुशी हो रही है कि वक्त तो काफ़ी लगा लेकिन अल्टीमेटली फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है. ये खुशी और भी अच्छा लगता है अगर आरती जी हमारे बीच में, लेकिन क्या कर सकते हैं. उनकी आखिरी पिक्चर है तो आई होप पिक्चर तो अच्छी है ही. इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत रेयर देखने को मिलती है. इसका जो मैसेज है ये हटके है, अलग है. इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम जो भी फिल्म करते हैं हम कहते हैं कुछ हटके है. इसमें वाकई कुछ हटके है ऐसा, तो अच्छा लगा इससे. थैंक यू. दिस फिल्म आपके रोल के बारे में. मैम लाइट में आइए मैम. Hello, a very good evening to everyone. I thank Mr. Bharat Palli sir and my producer Rahman sir. It's a first project and I'm working with them. I work hard for this project
and I'm disappointed for, like, Aarti ma'am is not here. We have really waited for this day, this evening. So I only say ki let's pray for her soul, that wherever she is, she will be happy, and we are also happy, of course, because she has also done very hard for this project. And thank you everyone. Thank you. थैंक यू। मैं मोनिका पटेल जी से रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू रहमान साहब। ओम शांति। ये मेरी पहली साउथ फिल्म है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि मैंने पहली बार साउथ में काम किया था। तो जो प्रोड्यूसर हैं बहुत अच्छे हैं और हमारे डायरेक्टर तो और भी बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ काम करके मुझे उन्होंने इतनी लिबर्टी दी कि हमारा जो फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है, जो नेक्स्ट लाइट का जो मैंने प्ले किया है, वो इतना खूबसूरती से निकल कर आया है। मैं उसके लिए जो अपने प्रोड्यूसर को और अपने डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड आई एम सॉरी मुकुल जी, आई एम रियली सॉरी, आई कॉल्ड यू मुकेश एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी वर्क टुगेदर इन घरवाली ऊपर वाली, या सो दैट्स व्हाई एक्चुअली मैं आपको बोली कि वो जल्दी में मैंने आपको मुकेश बोल दिया, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो और मेरी शुभकामनाएं हैं मेरे प्रोड्यूसर्स के लिए, उनकी बहुत मेहनत है और डायरेक्टर ने भी बहुत, हम लोग नाइट के अंदर जो है शूटिंग करते थे लेकिन पता ही नहीं चला। मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतनी मस्ती की सेट पर और इतनी डिसिप्लिन था, सब कुछ इतना अच्छा था, अरेंजमेंट वाज ऑसम, सब कुछ बहुत अच्छा था। और आरती जी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जहाँ भी हैं, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, उनके आत्मा को सुख और शांति दोनों दे। और फिल्म के लिए मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन सभी को मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि फिल्म जो है सबके लिए जो है गुड लक लेकर आए। ओम शांति। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जावेद अहमद खान साहब से, जो वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा से हैं। जब प्रोड्यूसर आपके पास आए थे इस टॉपिक को लेके तो सर्वप्रथम इस चित्रपट की कलाकारा मोहतरमा आरती अग्रवाल जी को, जो हमारे दरमियान नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर मौजूद तमाम कलाकार मंडली और सभी भाई बंधु बहनों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रहमान भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम दोनों हमेशा एक थोड़ी से फासले पे एक दूसरे के साथ भी रहते हैं। जब भी ज़रूरत होती है हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे। इस फिल्म का जो इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताया, ये फिल्म नक्सलाइट के ऊपर आधारित है और उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा नहीं, वाकई में हमारे देश को, हमारे मुल्क को इस तरह की फिल्मों की ज़रूरत है, जो हमारे देश के बेशतर अजला जो हैं डिस्ट्रिक्ट नक्सलाइट से प्रभावित हैं, जो हमारे देश को एक नासूर की तरह खाते जा रहे हैं, वो इसे ख़त्म करेंगे। और इस चित्रपट के माध्यम से पूरे देश को एक अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू सर। मैं गिरीश जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 शब्द कहें। ये श्रद्धांजलि है आरती जी को। बहुत दुख है, इस बात का खेद है कि आज हमारे बीच नहीं है। अक्सर इसे खुशी का मौका समझा जाता है जब भी हम किसी फिल्म के प्रेस मीट पे मिलते हैं या मुहूर्त पे मिलते हैं, लेकिन आज इसकी शुरुआत में एक ऐसे नोट पे करनी पड़ी जहाँ पे जिसे ऐसा कहा जाए कि खेत का माहौल। तो आज हम एक इंसान के तौर पे उनके लिए प्रे कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि सब अपने दिल से जो भी दुआ निकलती है, जो भी प्रेयर्स निकलती हैं, वो उन तक पहुँचें और वो जहाँ भी हैं उनको शांति मिले, वो शांति ठीक से रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।
रहमान को कई सालों से जानता हूँ, बहुत ही मेहनती आदमी है। जिस तरीके से लगन से उन्होंने ये पिक्चर बनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक ये लेके चले हैं नक्सलाइट के ऊपर, उसके ऊपर जो भी मेहनत की है भगवान इनको सफलता दे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। थैंक यू। रहमान जी, अब आप ये बताएं, बाकी लोगों ने तो सब चीज़ें बता दी हैं। रहमान जी, अभी इधर ही रुके। ये बताएं कि सेंसर में प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रेस वालों को पता तो चलना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तेलुगु हिंदी सेंसर हो चुका है, हिंदी से डब है तमिल में, तेलुगु से डब है मलयालम। तो उन लोगों को एक ही टाइटल होने की वजह से लगा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट रक्त चरित्र के जैसा फ्रेम टू फ्रेम एक ही है। तो उन्होंने हैदराबाद में करवाने के लिए बोले, मैं बोला नहीं, अलग अलग है, 40% आर्टिस्ट और स्टोरी डिफरेंट है। तो उस दिन से लेकर आज तक लटक रहा है और मैं प्राइम मिनिस्टर को सबको लेटर्स लिखा हूँ और इंशाल्लाह आगे लड़ता रहूँगा और लूँगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन लड़ते लड़ते बहुत वक्त निकल जाएगा। 6 महीना तो निकला है और वो हीरोइन ने आरती अग्रवाल जी ने फिल्म देखा और रात को 12 बजे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन लोगों ने जाके दूसरे दिन आके मुझे बोले कि मैं वेट कम होने के लिए ऑपरेशन कर रही हूँ, मुझे अच्छा नाम आएगा। मैं बोला मैडम एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक रहता है। उन्होंने कुछ किया, बॉम्बे में कम नहीं हुआ तो फिर अमेरिका जाके और जाने के टाइम में बोले ज़िंदगी में मैं फिल्म तुम मुझे बता भी नहीं पाओगे बोल के कि मैं बता ही नहीं पाया। मैं गुनहगार हूँ सर आरती जी के लिए, सही फर्क नहीं कर पाया। लेकिन रिलीज़ तो अब जल्दी करना चाहिए ना सर आपको, इसीलिए सर इनको 4 लैंग्वेज हमने कमिट किया है ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ करने के लिए। अभी 2 दिया हूँ, 2 इंशाल्लाह ट्रेलर्स प्रोमोस परसों में वो दिए हुए हैं और इंशाल्लाह इस मंथ आखिर तक जावेद भाई ने भी बात किया था। बाकी वेंकैया नायडू के OSD से भी सुधीर रेड्डी से फ़ोन आया था, जल्दी करके देंगे बोल के बोले हैं एज़ पर लीगल हक से। अब दूसरी बदलाव के लिए कोशिश करता हूँ सर, मैं बदला नहीं चाहता हूँ किसी। लेकिन आपने जो लेटर प्रेस को भेजा है उसमें लिखा कि सेंसर बोर्ड के ऑफिस में आपसे कोई मिलता भी नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, मुझे क्या किसी को भी नहीं मिलते हैं। मिले तो बड़ी बात है। प्रहलाद जिलानी से तो आप मुलाकात कर चुके हैं? मुलाकात की है, उन्होंने बोले भगवान को पूछो। अब भगवान को पूछने के लिए मुझे टिकट लेके जाना पड़ेगा, शायद वो करना पड़े तो भी कोई हटूंगा नहीं, मगर लेके रहूँगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। और सर 60 साल से नक्सलवाद देश पे सताया जा रहा है और नक्सल्स आम आदमी को मारते हैं, आम आदमी नक्सल को मार रहा है। और दूसरी बात क्या है कि पुलिस को मारने के चक्कर में एक को मारने के चक्कर में कई लोग हो रहे हैं। और उसमें से मंगल कृष्णप्पा आंध्र प्रदेश नक्सलिज्म के मतलब माओइस्ट सेक्रेटरी थे। उनकी वाइफ ने जो मेरे साथ जो तकलीफ़ें परेशानियां जो उनके मरने के बाद जो शेयर किए हैं, ऐसा किसी को नहीं होना है बोल के मैंने एक किया। स्टेट कार्यदर्शी ऑल इंडिया होने के बावजूद भी वो मरने के बाद आज उनकी परिवार खत्म है। और नक्सलाइट से बारे में जानकारी लेने के लिए, तकलीफ लेने के लिए मैंने भरत सर ने जो मेहनत की हुई है वो बराबर है। मैं ये समझता हूँ कि जंगल में कानून नहीं बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। जब चाय बनाने वाले मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं प्रजातंत्र में, और आम लोग मंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और एक टीचर का लड़का आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो हम प्रजातंत्र में हैं, तो क्यों नहीं हम हक से लड़ें। अगर किंगडम में हो सकता है जैसे नेपाल में था उस तरह हो, तो शायद गन की ज़रूरत है। यहाँ पर पेन बस है और बैलेट ही एक गन है बोल के मैं सोचता हूँ, और हम लोगों ने इसी पे डिस्कस किया है। और आर्टिस्टों के बारे में बोलना चाहे तो हर एक को मैं शुक्रगुजार हूँ। लॉन्ग टाइम खींच के फिल्म बनाने के बाद में भी आज भी कोऑपरेट है, क्योंकि खींचना इसलिए पड़ा कि हमेशा मुद्दा बदलते जा रहा है, हमेशा का करो ये करो। और आज मुकुल देव का शूटिंग है, अब उन्होंने मतलब मैं अनकॉन्शियस में उनको पहले बता नहीं पाया, उन्होंने फिर भी टाइम लेके मेरे लिए आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और एक आदित्य वो, और उन्होंने कड़पा दरगाह और तिरुपति गए हुए मन्नत मांगने के लिए। अब आरती जी तो ऊपर ही चले गए। और टाइम वालों के बारे में ये बताना है कि हर बार मेरे साथ खड़े रहें, और इस 6 महीने कोई प्रोजेक्ट डिले करता है तो बैर हट जाता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बैर हटा नहीं है और मैं लड़ूंगा। थैंक यू यहाँ आए हुए पत्रकारों को और विकास जी को और सबको मैं शुक्रगुजार हूँ सर।
अगर मेरे वजह से बोलने में या कुछ गलती हुई रहे तो माफ़ करके आगे करना। बेशक दीजिए ना, हर घर पे दे सकते थे। एक सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता था कि इस कार्यक्रम के अंदर हमारे महिला बाल विकास मंत्री विद्या ठाकुर जी आने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको फूड पॉइजनिंग होने के कारण अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और सारी टीम जो है उनके साथ लगी हुई है। हॉस्पिटल में गोरेगांव में एडमिट है, तो जिसके कारण वो नहीं आ सकी हैं। नामदार अपने क्षेत्र की जो विधायिका थी वो चूँकि मुख्यमंत्री जी ने उनको बुला लिया इसलिए वो नहीं आ पाई। ये सारी ट्रेजेडी हो गई जिसके कारण बहुत सारे VIPs नहीं आ सके। और चूँकि आज एक हादसा भी हुआ है जिसके कारण मुख्यमंत्री जी ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की, बहुत सारे लोग वहाँ पर चले गए, जिसके कारण इस क्षेत्र के कम से कम 4 विधायक जो हैं यहाँ आने वाले थे वो नहीं आ सके। धन्यवाद। थैंक यू। प्रेस से किसी को कुछ पूछना है? पूछिए ना सर। नक्सलाइट्स के ऊपर जो फिल्म है, इसके पहले भी काफ़ी नक्सलाइट्स के ऊपर फिल्में बनी हैं, तो इसमें क्या आपने कोई सॉल्यूशन बताया है फिल्म में? सर मैं सॉल्यूशन आपको पहले ही बोल दिया। प्रजातंत्र में गन से नहीं पेन से। पार्लियामेंट में कानून बनता है, जंगल में नहीं। हम रहना चाहिए पार्लियामेंट में, जंगल में रहेंगे तो क्या होगा। उसके लिए एक खूबसूरत मोड़ देके कम इसमें मतलब हर फिल्म में लास्ट में 2-4 नक्सलाइट बच जाते हैं और वो भाग जाते हैं, इतने में एंड होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, नक्सलाइट बदल के पब्लिक में आते हैं। और उसके लिए एक सुभाष चंद्र बोस से मिलिट्री में लड़े हुए कैरेक्टर, सुभाष चंद्र बोस के साथ 1942 अक्टूबर 21 आज़ाद हिंद फौज में सोल्जर बने हुए सौरभ दुबे साहब ने उसको लीड करते हैं और उन लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्यों रखे हुए हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ टीम है, आज कोई भी नहीं दिख नहीं रहे, तो 6 आदमी जिंदा है। उनमें से अपना कैरेक्टर फिल्म का एक रहे तो क्या करेगा ये नक्सलाइट प्रॉब्लम को। वही सोल्यूशन सौरभ दुबे जी के साथ हमने करवाया सर। अच्छा, आरती ने अपनी डबिंग कर ली हुई है या किसी और से करवाएगी? नहीं, 2 लैंग्वेज भी नहीं। बाकी में आरती ने खुद की हुई है अपनी डबिंग? नहीं, उन्होंने अभी तक किया है नहीं। अच्छा, कोई भी फिल्म नहीं किया सर, प्लीज। डबिंग नहीं किया? नहीं नहीं। आतंकवादी और नक्सल में बहुत अंतर होता है, इस बात को सर मैं नक्सल बोला, आतंकवादी नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो नक्सल होते हैं सर पैसा, माल, मत्ता, नाम सब छोड़कर देश के लिए लड़ने वाले, विदाउट रेमुनेशन। आर्मी भी रेमुनेशन लेके लड़ता है, ये लोग नहीं लड़ते हैं। बट दैट वे इज नॉट करेक्ट, माय ओपिनियन। और सर आपकी सिंपैथी रही है मतलब नक्सल के साथ इसमें? सिंपैथी रहे, अपना आदमी रहे तो ये आ जाए भाई बोलेंगे ना, किसको नहीं है। देश के हर आम आदमी को सिंपैथी है, क्योंकि मर रहे हैं और पुलिस को मार रहे हैं। सर व्हाट इज द पुलिस क्या गलती करती है? आर्डर को फॉलो करती है। वो आर्डर देने वाले तुम बन सकते हो, मगर पुलिस आर्डर देने वाला नहीं बन सकते ना सर। अच्छा, फिल्म को काफ़ी अरसा हो गया, कंटिन्यूटी में कहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, इंशाल्लाह हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ है तो शूट के लिए तैयार होते हैं, हम करते हैं। आपने इस फिल्म को एक नक्सलवादी के खिलाफ चले एक ऑपरेशन के तहत इसका टाइटल दिया? सर ऑपरेशन ग्रीन हंट है, तो नक्सल को पकड़ के बंद करना गवर्नमेंट ने बनाई है। तो ये ऑपरेशन ग्रीन हंट है, पकड़ के पब्लिक में लाना। नहीं तो क्या ये पूरी फिल्म उस ऑपरेशन के ऊपर आधारित नहीं है ना? नहीं, वो मीनिंग है कि वो पकड़ना चाहते हैं, यहाँ ये चाहते हैं कि पकड़ के पब्लिक में लाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, मगर वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये वे अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। सरकार की ओर से जो अत्याचार होता है, पुलिस का जो अत्याचार है, उस वजह से भी नक्सल बनते हैं। सर पुलिस का अत्याचार हुआ तो क्या सर, ये देश में 5 मंत्रियों को सजा नहीं हुई, जड्जियों को सजा नहीं हुई। अगर सही सबूत हम पेश कर सकते हैं तो क्यों नहीं होती? मतलब हम सबूत पेश नहीं कर सकते। इसमें आपने वो ठीक, हम सब जानते हैं, इसमें दिखाया आपने सर? हाँ सर, अगर सबूत, अगर सर क्या है, गवाह डरता है बोलते हैं ना सर। अगर 200 जिलों पे हमारी हुकूमत चलती है, कहने वाले नक्सल अगर साथ रहे तो कोई डरा सकता है सर गवाह को? मतलब हम लड़ने में कामयाब नहीं। अच्छा, फिल्म बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी और कब बनी थी? हमें स्टोरी कब? रियल लाइफ बोले तो सर जैसे मैं बोला, मंगल कृष्णप्पा ऑल इंडिया कार्यदर्शी थे, उनका कुछ पेश, और किसी को रोज पेपर में देख रहे हैं बस उड़ा दिए, 10 आदमी मार गए और पुलिस को मार रहे हैं। सर पुलिस हर वक्त हमारे साथ खड़ी है। भला पुलिस व्यक्ति गलत हो सकता है, व्यवस्था गलत नहीं है सर।
अब वो व्यवस्था को सुधारना अगर गलत हो तो किसका काम है? हमारा काम। सर सेंसर बोर्ड को क्या आपत्ति है जो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई? सर रिलीज नहीं हो पाई नहीं, फरवरी में सेंसर हुआ है हिंदी, और हिंदी से डब है तमिल में, तेलुगु से डब है मलयालम में। डब वर्जन्स रोकने के वजह से आज फिल्म रुकी हुई है और इस पर मैं फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल फिल्म के हीरो मुकुल देव से। मुकुल जी सर ऊपर अपनी फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या है? सर खड़े हो सर, कैमरा स्लाइड में ही ना सर, लाइट में थोड़ा लाइट स्लाइड में जी। अनएम्प्लॉयड है, जैसे आप कह सकते हैं कि द यूथ रिप्रेजेंटिंग द यूथ ऑफ आंध्र प्रदेश, और जो भी इसकी प्रेमाइस है। अनएम्प्लॉयड लड़का है, इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं इसकी लाइफ में कि ये नक्सलवाद की तरफ उस मूवमेंट में जुड़ जाता है किसी न किसी तरह, और उसके बाद वहाँ पर जाके सारी चीज़ों को देखने के बाद व्हेन ही सीज द होल थिंग क्लोज क्वार्टर्स, तो उसको पता लगता है कि ये गलत है, और उसके बाद कैसा इसका रेफॉर्मेशन है उसके बाद, बट एंड में फिर क्या होता है, रिफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता, उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये इसके 4 वर्जन है, 4 भाषाएं हैं। हाँ जी। तो आप चारों में? हाँ जी, फिल्म तो वही है, और उसकी लैंग्वेज अलग अलग, मतलब अलग अलग भाषा में डब होगी है। तो मैंने तो ये फिल्म तेलुगु में की थी, उसके बाद अब हिंदी में बनी है, और आगे जहाँ जहाँ लेके जाएंगे उनका कॉपीराइट है। सर तेलुगु सीखने में कितनी मतलब प्रिपेयर किया आपने तेलुगु? मैंने जी 16-17 फिल्में तो की हैं तेलुगु में, तो वो वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो प्रॉम्प्टर लेके दिखा देते हैं, उसको इंग्लिश, रोमन इंग्लिश में लिख लेता हूँ, तेलुगु को और प्रोनाउंस कर लेता हूँ। अब थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ, मैं समझ भी लेता हूँ। बिल्कुल जी, आप तेलुगु में व्यस्त हैं, पंजाबी फिल्मों में व्यस्त हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ? सर बस यही है, यही होता रहता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, और अच्छा लगता है टू ट्रैवल एंड टू कीप वर्किंग एज एन एक्टर। नहीं, सबसे बड़ी बात अगर आज देखें कि जितने भी पंजाबी चैनल हैं जी, सब पे मुकुल देव सबसे पहले नजर आते हैं। क्या बात है, थैंक यू। तो तेलुगु में भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं आजकल। तो काम करने में कहाँ मज़ा ज़्यादा आ रहा है? देखिए, मज़ा तो हर जगह आता है, बिकॉज फिल्मों की भाषा एक ही है। फिल्मिंग इन बॉम्बे, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, एवरीवेयर इज़ द सेम। लेकिन पंजाब में ये है कि हमारी वो अपनी मिट्टी है, वहीं के जन्मे हुए हम, तो वहाँ थोड़ा और मन लग जाता है। बट आई वर्क एवरीवेयर, एंड कमिंग टू साउथ इंडियन सिनेमा एंड तेलुगु सिनेमा, उसमें ये है कि वन गेट्स टू वर्क विद सम ब्रिलियंट टेक्नीशियंस, इंक्लूडिंग भरत सर, people who know their job, who are technically very well educated at the same time, apart from being creatively very educated. तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और टेक्निक का बहुत योगदान है साउथ इंडियन। आरती के साथ ये आपकी पहली फिल्म है, इससे पहले भी काम किया उसने? जी, एक ही फिल्म की मैंने उनके साथ। साउथ में बनी है। हाँ जी। कौन सी लैंग्वेज में सेंसर हो गया? दो हिंदी हो गया, हिंदी तेलुगु हो गया है, दो। अभी बाकी डब लैंग्वेज बचे। जब हिंदी और तेलुगु में हो गया, क्या प्रॉब्लम होना चाहिए सेंसर बोर्ड को? वो आप जानना चाहिए सर। सेंसर बोर्ड आर्टिकल रूल 5.1 चेयरमैन अंडर सेक्शन आता है कि जहाँ ओरिजिनल वर्जन कराओगे उधर ही डब वर्जन कराना है। अब ये ऐसा लगा है कि पूरा कानून का बुक सेंसर का मुझे याद आ गया। हाँ वही तो मैंने सर, कैसे पॉइंट रिसीव करते हैं? अभी क्या है, तुम्हारा लड़ाई सही है मगर रास्ता गलत है, मंजिल ठीक है मगर रास्ता गलत है, वही ना ट्रैक पे। ये समझाने की कोशिश किए हुए हमने डायरेक्टर साहब ने, जितनी अक्कल थी उतनी। मुकुल, आपके भाई राहुल का भी साउथ में बहुत बड़ा नाम है, तो क्या उनसे इंस्पायर होकर आप साउथ प्रति रुझान किया था आपने? जी, पहली फिल्म तो उन्हीं के कहने पे की थी, क्योंकि वो फिल्म कर नहीं पाए थे, तो फिर उनकी जगह मैंने की थी वो फिल्म, तो वहाँ से फिर करियर स्टार्ट हो गया। और भाई ने क्या कुछ टिप्स दिए थे आपको साउथ में काम करने के लिए? कुछ नहीं, वो तो हमेशा टिप्स देता रहता है, बट कुछ खास नहीं। वो मेरी पहली फिल्म काफ़ी चल गई थी वहाँ पे, कृष्णा उसका नाम था, रवि तेजा के साथ। तो उसके बाद फिर काम आता रहा और करते गए। हाँ जी, जी जी, हाँ हाँ। Mukul sir, since you hail from a police family, जी, what is your personal opinion on the Naxalite movement? It's definitely against the law.
I would feel. I'll talk like a policeman, son. It's not lawful. It is not legal. For that matter, any such movement, they're not legal movements. They're not lawful. And in my character, जो मेरे character की progression है इस film में, I've tried to portray the futility of such a thing. Because जब आप नक्सलवाद कहते हैं तो there is violence included. So anything which goes violent, for me, it's against the law. Thank you. We have a picture before we end. Please, sir. For a good picture. दोस्त इधर लेकर आ जाओ लाइट यार। हाँ यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे लगा दो लाइट यार। हाँ यहाँ लगा दे। या बंद ही कर दे। खाने के बाद लगा रहा है तू। अरे तूने सारे ड्रामेटिक करेक्ट बेसिकली तेलुगु में बना मलयालम सर मलयालम से मलयालम नहीं करता, तमिल वाले मलयालम में तमिल भी देखते हैं, हिंदी अच्छा सेम है। मलयालम और तमिल बहुत मिलती है। Thank you very much, sir. Thanks a lot. सर ये स्ट्रेट सर, सर सामने, सर इस तरफ। थैंक यू। Thank you, brother. Thank you very much. सर सामने यहाँ पे सर रुकिए सर वन मिनट। देखिए डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ, मिस इन द सेंस कि मतलब हम कुलीग्स ज़्यादा थे, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स आल्सो ड्यूरिंग शूटिंग। तो मिस करने से ज़्यादा बुरा लगता है जब आदमी चला जाता है, ऐसे इंसान चला जाता है। और उनकी याद में इस फिल्म को रिलीज़ करना मेरे हिसाब से वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो इस फिल्म में इस फिल्म से काफ़ी अटैच थी और वो चाहती थी कि ये फिल्म रिलीज़ हो, और काफ़ी अरसे से फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही थी। तब उनके जाने के बाद रिलीज़ हो रही है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बातें जो आपको याद रही है, हमेशा आपके साथ कोई ऐसी बातें हुई है, ऐसी घटना ही घटी या कोई सच सीन कोई फिल्माने की घटना तो ये हुई कि मुझे इसमें डांस वांस बहुत करना था, तो कुछ गानों में मैंने डांस किया है, तो मुझे डांसिंग में उतना कंफर्ट मेरे को नहीं लगता है, थोड़ा अजीब लगता है डांस करते हुए। तो मेरा मजाक बहुत उड़ाती थी, बिकॉज आई हैड 2 लेफ्ट फीट। और हमने कहीं कहीं जंगलों में जाके बहुत शूटिंग की, बहुत रिगरस शूटिंग थी, तो काफ़ी वक्त बिताया हमने एक दूसरे के साथ। और बड़ा अच्छा उन्होंने और उनके फादर ने मुझे अपने घर में भी वेलकम दिया जब मैं हैदराबाद गया, क्योंकि मैं तो बॉम्बे से था। तो एक लाइक अ फैमिली दे ट्रीटेड मी। जी, फिल्म नक्सलवाद के ऊपर है, और नक्सलवाद कैसे पनपता है और क्यों पनपता है, और उसके पीछे कारण क्या हैं, और गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है, और पब्लिक पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ हैं, वो इस पूरे इस वेव में कैसे घुस जाते हैं वो, तो उनके बारे में ये फिल्म है। सर आपका क्या किरदार है फिल्म के अंदर? मेरा किरदार एक आम आदमी का है जो नक्सलवाद में घुस जाता है, खिंचा चला जाता है उसके अंदर, और फिर उसके बाद उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं
नक्सलवाद को लेके, नक्सलाइट्स को लेके, और कैसे फिर उसका रेफॉर्मेशन होता है, उसमें बदलाव आता है और कैसे उसकी वापसी होती है। थोड़ी सी ट्रैजिक एंडिंग है इस फिल्म की, लेकिन अच्छी है। जी पिछले साल मेरे ख्याल 4 फिल्में रिलीज हुई बॉलीवुड में, इस साल 4 और हैं। तो लेकिन सर जब बॉलीवुड में इस तरीके की फिल्म बनती है, जैसे नक्सल पे हो जाए, चाहे किसी भी टॉपिक, तो सेंसर में उन्हें कट सीन वगैरह कट करके सेंसर की तरफ से उन्हें रजामंदी मिल ही जाती है। इस फिल्म को क्या आपको लगता है कि अगर 2 ही लैंग्वेज में किया गया होता तो अभी तक रजामंदी मिल गई है, और अगर 4 लैंग्वेज की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? सेंसर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं रजामंदी मिली। मेरे हिसाब से फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं जो उसको रजामंदी ना मिले। बड़ी सीधी सी कहानी है, सिंपल सा नैरेटिव है इसका। तो आई डोंट नो, कुछ होगा, कोई टेक्निकल का चक्कर होगा। राइट, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों। फिल्म क्या बोलते हैं उसको, नक्सलवादियों के ऊपर बेस है। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है फिल्म के बारे में, बिकॉज आई एम देयर इन द सॉन्ग। मैं अपने सॉन्ग के बारे में बात करूँगी। तो मेरा सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, चाहत की चटोरी थी मैं, टाइटल इज़। एंड हमारे मास्टर जी जो अभी यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल, तो बहुत मेहनत की है मैंने हैदराबाद में पहले इसका हमारा रिहर्सल हुआ था। देन हमने फिल्म सिटी में गाना शूट किया है, विच इज़ लाइक 3 days ये सॉन्ग चला है, जिसमें मुझे फीवर भी हो गया था। मुझे चोटें भी बहुत लगी थी मेरे पैरों पे, क्योंकि साउथ का आपको पता है बहुत हार्ड वर्क होता है और बहुत मेहनत कराते हैं। और मैंने डांस किया इससे पहले भी, बट मैंने ऐसा डांस नहीं किया था जैसे उन्होंने कराया है मुझे। इसमें इन्होंने हर तरफ इसमें इंग्लिश भी है, इसमें अरेबिक सॉन्ग भी है, तो मैंने बेलीज भी की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। बिल अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी 6 कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा चेंज है, मेरे लुक अलग अलग दिए उन्होंने, 6 लुक्स दिए हैं उन्होंने मुझे अलग अलग। तो अच्छा है, आप लोग देखिए, अच्छा लगेगा। तो इस आदमी का आपके आरती जी के साथ कोई मतलब लाइक शूटिंग के दौरान कभी आप हाँ, और कोई मेमोरीज हैं उनके साथ? या आरती जी को मैं मिली हूँ हैदराबाद में। शी वॉज लाइक वेरी डाउन टू अर्थ। एक्टर्स नॉर्मली मतलब होते नहीं हैं, शी वॉज़ वेरी डाउन टू अर्थ, शी वॉज़ वेरी नेचुरल, होता है ना एक नेचुरल, शी वॉज नेचुरल। जो बोलती हैं मुँह पे बोल देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मन में कोई चीज़ दबा के रखी है। शी हेल्प मी ऑल्सो, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे क्या करते हैं, बिकॉज मेरी ये फर्स्ट मूवी है। एंड अभी मैं टीवी सीरियल्स कर रही हूँ फ़िलहाल तो। एंड देखते हैं, वैसे उनके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा, वो बहुत अच्छी हैं। मैं सोच रही थी कि मैं उनको ऑडियो फंक्शन में मिलूँगी, पर सडन डेथ की वजह से मैं देखते हैं जो भी होता है, मैं मिल नहीं पाई उनको। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है? मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी मैं सहारा 1 पे जय बजरंग बली आता है, उसमें वर्क कर रही हूँ मैं एज अ महामाया। और मैं उनके 3 प्रोजेक्ट्स और स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें उनके एक डीडी का प्रोजेक्ट है, एक बिग मैजिक है, एक सब टीवी का प्रोजेक्ट है। मैं तीनों में हूँ फ़िलहाल तो। और मैंने उनका एक और शो भी किया है, आस्था, जो सहारा पे आता है। प्लस मैं एक मूवी कर रही हूँ जो हमारी यूपी पे बेस है, जो मैं लखनऊ से हूँ फ़िलहाल तो, वो कानपुर के ऊपर बेस है मूवी, वो मैं कर रही हूँ। प्लस 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे पता करेंगे अभी। थैंक यू। कई फिल्में पहले भी आ चुकी है, इसमें क्या अलग है? हर कहानी अलग अलग होता है। इसमें क्या है बोले तो नक्सलाइट पुलिस बीच में आम आदमी बहुत लोग, उनका कसूर भी नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? गवर्नमेंट क्यों ऐसा एक सिटी सेंटर में बम लगा के होम मिनिस्टर को ब्लास्ट करता है? अरे पेट्रोल बढ़ गया बोले तो आम आदमी से प्राइम मिनिस्टर तक बात कर रहे हैं। इतना सीरियस मैटर को क्यों सीरियस नहीं ले रहे? क्यों इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं चाह रहे? क्यों नहीं चाह रहे? तो हमारा ये क्या है बोले तो फॉरेस्ट में रह के लड़े तो कुछ नहीं होगा, अभी नहीं, और एक 20 साल हो, 50 साल हो, 100 ईयर्स हो, आओ पब्लिक के अंदर आओ, असेंबली में बैठो, पूछो, आप ही ऑर्डर करो, यही हमारा सोल्यूशन भी दिखाया गया है। यस ना डिफरेंट। आरती जी की बात, हाँ, वेरी गुड आर्टिस्ट। तेलुगु में इतना पिक्चर्स किया, एक 20 पिक्चर्स किया, हर बिग स्टार, चिरंजीवी एंड
एवरीवन। इतना अच्छा पिक्चर किया, पूरा हिट। और लड़की का पिक्चर में काम किया, पूरा हिट। मेरे को फर्स्ट टाइम ये पिक्चर स्टोरी लेके गए तो ये टाइलर में देखते ही नक्सलाइट जैसा दिखता हूँ, इसलिए उनको लिया था। रवि काले जी एंड पोसान कृष्णमुरली और ये पूरा किया ना, बहुत अच्छा किया। तो आरती अग्रवाल से काम इतना खुश है मेरे को। शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ऐसा बताए तो ऐसा पकड़ लेता हूँ। अच्छा डांस भी करता है, हाँ, वेरी फ्रेंडली मूवमेंट। बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ। वो पूरा याद आए तो बात करने में भी थोड़ा ये हो रहा है। सो वेरी 1-2 महीने के पहले, जस्ट 2 months बिफोर आई मेट हर। सेंसर बोर्ड क्या अटकी है, क्या हो जाएगी, हिंदी में हुई है तो हिंदी में रिलीज कर दो, क्यों नहीं? तो स्मॉल टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएंगे। प्रॉब्लम लेट नहीं होगा, लेट नहीं होगा, अभी लेट नहीं होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको नक्सलवाद को चुना पड़ा है सर? जीना भी है तो क्या है, साइमल्टेनियसली एक ही सब्जेक्ट ऐसा चुनो कि 4 जगह चढ़े। और डबल लैंग्वेज बनाने से ये फ़ायदा है कि 40 दिन का एक लैंग्वेज का शूटिंग हो तो 2 लैंग्वेज अगर डायरेक्ट शूट करना हो तो 80 डेज लग जाता है। 60 डेज में काम हो गया। बजट भी बच रहा है इंटरनेशनल मुद्दा लेने की वजह से, नेशनल मुद्दा लेने की वजह से। और जो संदेश देना चाहता हूँ वो भी दे दिया, इकोनॉमिकली और 2 भी। सर हिंदी तेलुगु में नहीं अटकी है, ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं अटकी है, डबिंग में अटकी है। जब नक्सलाइटों से ही लड़के जनजीवन संबंधी में आ जाओ, पब्लिक में बोल रहा हूँ, तो क्या एक सेंसर बोर्ड के चेयरमैन के ईगो को डरूं मैं? ईगो को नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि 4 लैंग्वेज नहीं हुई है आपकी फिल्म अभी तक, तो अगर आप मैडम ओरिजिनल क्या है, सही बात है और सही बात, बेशक आपने मेरे हमदर्द हैं इसलिए बोल रहे हैं। मैं क्या सोचता हूँ, हिंदुस्तान मुझे जो राइट्स दिया है वो राइट्स के लिए मैं लड़ सकता हूँ। और दूसरी बात क्या है, कंडेम्प्ट अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून का ही खिलाफ, मतलब देशद्रोह के बराबर होता है। शायद उनको समझ में नहीं आता है, वो समझ में आ जाऊंगा या मुझे उसके लिए जो करना पड़ेगा। सर क्या है, जैसे सुनिए, ये खरीदे हुए मैं इनको मैं बेचा हूँ। सुनिए ना, मैं सर आई एम नॉट इको, मैं बदलाव नहीं चाहता हूँ, बदला चाहता हूँ। नहीं पर एक्चुअली क्या है, 4 लैंग्वेज इनको कमिट किए हुआ है, तो ये क्या सोच के मेरे से फिल्म बाइंग की है कि भाई उधर से थोड़ा आगे। एक बात मैं बोल रहा हूँ कि तेलुगु हिंदी ब्लैक हो गई, बाकी लैंग्वेजों के इनकी इकोनॉमिकल पोजीशन क्या होगी? नहीं पर मुझे दे देने के बाद फिर क्या देखेंगे? जो स्ट्रैटेजी थी कि 4 लैंग्वेज में साइमल्टेनियसली रिलीज करने के लिए, अभी जब हमें ओरिजिनल लैंग्वेजेस का सेंसर आ चुका है, हिंदी और तेलुगु का आ चुका है सेंसर सर्टिफिकेट, तो ऑब्वियसली अभी ज़्यादा वक्त नहीं लगता एक डब वर्जन करने के लिए। सो देन यू स्पेंड टाइम एंड मनी कि आप एक मूवी को सेंसर हो गया उसको भी डब करेंगे। आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि ठीक है अभी 4 लैंग्वेज होगी तो आप साइमल्टेनियसली रिलीज करेंगे। फिर आप सेंसर बोर्ड जाते हो कि चलो ठीक है कितना टाइम लगेगा। अप टिल नाउ 16 टाइम्स सेंसर बोर्ड जाके आए, कोई रीजनल ऑफिसर नहीं है, कोई आंसर नहीं कर रहा है। यू आर नॉट गेटिंग समथिंग इन राइटिंग, हमें राइटिंग में नहीं दे रहा, कोई कंफर्म आंसर नहीं दे रहा है कि ये होगा नहीं, कि 6 महीने बाद होगा, कि इतने टाइम बाद होगा। तो हाउ आर वी सपोज टू एज अ बिजनेस, हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, हम कैसे आगे बढ़े जब हमें पता ही नहीं है कि सेंसर बोर्ड क्या बोल रहा है। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि जब 2 लैंग्वेज बन चुकी है तो सब 2 इंक्रीज कर दो आप। पर अगर मैं ओरिजिनल लैंग्वेजेस, लालच आपको कि चारों में करेंगे, नहीं लालच की बात नहीं है, दिस इज नहीं लालच की बात नहीं है, पर अगर आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज में मैं रिलीज कर लेता हूँ, ओरिजिनल लैंग्वेज सब लोग देख के आए, चलो ठीक है नो प्रॉब्लम, बट देन हु इज गोइंग टू गो फॉर द डब्ड वर्जन वंस ओरिजिनल आउट और आप 2 महीने बाद डब निकालेंगे, तो दैट डज नॉट मेक बिजनेस सेंस। आप अगर निकाल रहे हो तो साथ में निकालेंगे। क्यों सर, बाहुबली निकाल सकते हैं, रक्त चरित्र निकाल सकते हैं, तो क्या रहमान खान नहीं निकाल सकता? सर क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, मतलब आप? कुछ नहीं, सेंसर बोर्ड कुछ नहीं, सेंसर करके दे दे। और दूसरी बात, आगे किसी को ऐसा नहीं होने का मुझे एश्योरेंस चाहिए। सर मैं अभी चुपचाप बैठा हूँ, रमजान महीना अभी आई विल फाइट इट। चाहिए तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मुझे कोई ये नहीं है। अरे सर एक बात बताऊँ, इस सीमेंट में उनसे किस तरीके से आप लोगों की मेमोरी
कोई याद है जो ऐसी बात? क्या है मैडम, यहाँ पे मैं उनको पकड़ हम लोग लड़ते लड़ते जो है ना दोनों ऐसे हो गए कि हिंदी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने जाके, मैं हैदराबाद में था, हिंदी मतलब दिखाओ दिखाओ बोल रहे थे, तो मैं ऐसे ही टाल रहा था कि इनको आर्टिस्ट को क्या बताऊँ। तो उन्होंने रात में जाके फिल्म देखे 11:30 बजे, मुझे मालूम नहीं है स्टूडियो वालों को, उनको देखे सबको 1000-2000 टेक्नीशियनों को पैसा दिए। तो रात को 11:30 बजे फ़ोन किए कि मैं रहमान जी मैं फ़िल्म देख ली हूँ। बोला फिल्म कहाँ से देखेंगे भाई। तो बाद में म्यूज़िक डायरेक्टर ने वो बाजू में रह के बोला कि रहमान भाई ये बहुत जिद कर रहे थे इसलिए मैं बताया। तो वो फिल्म देखने के बाद फिर मुझे घर पे बुलाया, इधर ही अपना ICICI बैंक के पास बुला के कि बोले रहमान जी इसमें तो मुझे बहुत अच्छा नाम आ जाएगा, मैं हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है, जैसे तेलुगु में विजय शांति हुआ करते थे, रेखा जी हुआ करते थे, उस तरह मैं हो जाऊँगी, अभी मैं वेट कम होना चाहती हूँ। मैं बोला मत कीजिए, कब का, मतलब बोले नहीं मैं डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने करवा के आया है, और ज़्यादा कम करने के लिए ऑडियो फंक्शन होने के बाद जाएंगे बोल के सोचा था। 4 लैंग्वेज का ऑडियो फंक्शन दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टरों के साथ रखने के लिए 3 बार मैं अप्रोच होके कैंसिल किया हूँ, बिकॉज सेंसर। तो बेसिकली आरती ऑल्सो वांटेड टू सी द फिल्म। उन्होंने बताया था कि कि मूवी देख ली है, उनको भी बहुत अच्छा लगा, ऑडियो फंक्शन देखना। शी वाज वेरी एक्साइटेड अमंग्स ऑल द स्टार्स, अमंग्स ऑल द कास्टिंग, बहुत एक्साइटेड थी वो कि हाँ आई फील दैट आई हैव डन अ गुड जॉब, मैंने अपने परफॉर्मेंस अच्छा किया, ये वो आप रिलीज़ करो ये पिक्चर, जल्दी रिलीज़ करो, दिस एंड दैट। वो उन्होंने कितने कॉल किए होंगे रहमान जी को भी, कभी ये रिलीज़, कभी ये फंक्शन, कभी अब सेंसर कर लास्ट में 6 महीने ऐसे निकल गए सेंसर बोर्ड के। 6 months इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स अ वेरी बिग हरासमेंट। और हमने वी रिटन टू 15 डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, सब लोग को हमने लेटर्स भी सबने लेटर दिया, दे हैव रिप्लाइड सेइंग दैट दे आर गोइंग टू लुक इनटू द मैटर। तो वो एक फेज आ गया जहाँ पे मूवी अटक गई और आरती कुड नॉट सी द रिलीज ऑफ द फिल्म। जैसा उन्होंने बोला वैसे ही किया। और मिल गया आपको ना, फिल्म इससे बन सकती है। अभी वो तो ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, अभी कैसे इस पे जनवरी में मुझे डिलीवरी देना था, ये लोग को जनवरी 26 को रिलीज़ करना था। डिले होते होते आज मेरी पोजीशन ये है, आप जानते हो जब लेना पड़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब देता हूँ बोलने के बाद फिर परेशानी स्टार्ट होती है। गुस्सा नहीं आता है सर, मतलब हंसी आती है कैसे बेवकूफ़ आके काम बैठ गए हैं। सर आपको इंस्पायर किसने किया इस फिल्म को बनाने के लिए, मतलब कि नक्सल के ऊपर फिल्म बनाई जाए? सर मेरे गांव में मंगली कृष्णप्पा, ऑल इंडिया माओइस्ट कार्यदर्शी सेक्रेटरी, उनके बीवी बच्चों ने, उनके बीवी मेरे गांव के बाजू में है, उन्होंने जो दुख उनके मरने के बाद उनका परिवार जो बांट रहा है ना वो, और रोज़ पेपर देखते हैं, कई सारे आते हैं। तो सर कुछ वक्त पे यंगस्टर में हर आदमी वो दौर से मोड़ता है, शायद मैं भी वो रास्ते में चला हूँ, मतलब अट्रैक्शन, मतलब गन लेके घूमना नहीं है और पेन लेके अच्छा है भाई बोल के सोचे हो। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एक्टर क्या है, किरदार क्या है? मेरा इसमें जो है, मैंने नेक्सलाइट का जो है रोल किया है इसके अंदर। जो पीछे जो बैकग्राउंड बताई है कि भी मतलब वो किस तरह से, मतलब नेक्सलाइट वो क्यों बनती है, कैसे बनती है। तो वो जो है कॉलेज की बहुत दबंग लड़की होती है एंड वो एक पॉलिटिशियन है, देन फिर वो किस तरह से उसके ट्रैप में आ जाती है और किस तरह से आ जाती है। उसको लगता है कि मैं अपनी बात लोगों के सामने कह सकती हूँ, लेकिन उसे नहीं पता चलता कि वो किस तरह से पॉलिटिशियन के टच में आते हैं, फिर वो किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड देन शी बिकम अ नेक्सलाइट, वो नेक्सलाइट बनती है। एंड देन उसके साथ जो है और जो 4-5 जो हमारे किरदार हैं, जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट होती हूँ, फिर एक बिजनेसमैन होता है, एक टीचर होता है, तो वो अपने अपनी जगह किस तरह से उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो फिर वो जो है कि मतलब इस सिस्टम को किस तरह से चेंज करें, तो देन दे बिकम अ नेक्सलाइट, दैट इज़ द स्टोरी। मैम आपकी आरती जी के साथ नहीं, ये मेरी पहली साउथ फिल्म थी और मेरा बैड लक है कि मेरे और उनके, वैसे तो पूरी फिल्म के अंदर मेरा जो है कैरेक्टर है, बट लेकिन उनके साथ मेरा कोई ऐसा इंडिविजुअल सीन नहीं है, मतलब ऐसा। थैंक यू। लेकिन ऐसा नहीं कि फिल्म में कहीं रिपोर्टिंग करता हुआ नज़र आएगा, जस्ट बैकग्राउंड है उसका। बाकी ये उस ग्रुप को लीड करता है, जो ग्रुप ये चाहता है कि नक्सलाइट जंगल छोड़कर पब्लिक में आए, इलेक्शन लड़े और संसद में बैठे हैं, तो ये करेंगे। आरती जी के साथ नहीं सीन, उनके साथ सीन कोई नहीं।
शूटिंग जो खुद मैंने की है उसकी यादें ऐसी हैं कि एक अच्छे माहौल में काम किया, अच्छे लोग मिले वहाँ पर, और ये पहली फिल्म है मेरी साउथ की। थैंक यू।